Assalamu alaikum student. The topic which we are going to discuss today is mind maps. You can see these are diagrams of mind maps. This is related to traveling, how you can travel, means of transportation, and this is related to global warming and any other. So, first of all, what is mind map? A mind map is a visual form of note making that can be done either individually or as part of a group. At its heart is a central image और idea. माइंड मैप एक ऐसी विजुअल फॉर्म है नोट मेकिंग की जो कि आप एज ए इंडिविजुअली सेपरेट भी कर सकते हो या फिर ग्रुप में भी कर सकते हो. इसमें यह है कि आपने सेंट्रल इमेज या सेंट्रल आइडिया जो है उसको प्रेजेंट करना होता है और की पॉइंट्स के साथ फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन करनी होती है. A mind map is a powerful graphic technique which provides a universal key to unlock the potential of the brain. माइंड मैप एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप ये बता सकते हैं कि आप व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, आपका जितना पोटेंशियल है या जितना आप इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हो उसका एक रफ इमेज आपको मिल जाता है या रफ आइडिया मिल जाता है. द माइंड मैप कैन बी अप्लाइड to every aspect of life where improved learning and clearer thinking will enhance your productivity. माइंड मैप आप हर ऐसी फील्ड में यूज कर सकते हो जहां पे आप लर्निंग को इम्प्रूव करना चाह रहे हो और प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करना चाह रहे हो या अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करना चाह रहे हो. It harnesses the full range of cortical skills, word, image, number, logic, rhythm, color, and spatial awareness in a single, uniquely powerful manner. In so doing, it gives you the freedom to capture the infinite power and creativity of your brain. माइंड मैप एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें डिफरेंट स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं. आप ये वर्ड की फॉर्म में कर सकते हैं, इमेज की फॉर्म में कर सकते हैं, नंबर की फॉर्म में कर सकते हैं, लॉजिक, रिथम, कलर या किसी भी तरीके से आप माइंड मैप बना सकते हैं. एक्चुअली ये एक सिंगल कॉन्सेप्ट होता है जिसको आपने एलेबोरेट करना होता है या एक्सप्लेन करना होता है और ये आपकी क्रिएटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं. Here we have another definition of mind map. A mind map is a diagram used to visually organize information. A mind map is often created around a single concept, drawn as an image in the center of a blank landscape page, to which associated representations of ideas, such as image words and parts of words, are added. माइंड मैप एक ऐसी डायग्रामेटिकली फॉर्म है जिसमें इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये एक ब्लैंक पेज के मिडल में बनाया जाता है और फिर उससे एसोसिएटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम फर्दर कीवर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं. डेफिनेशन. Mind maps are a unique thinking tool that will bring out your natural genius and enable you to shine in every area of your life. Next, do you want to come up with innovative ideas and creative solutions? Memorize information and recall it under pressure. Set goals and achieve them.
change career or start up your own venture, be an excellent time manager, run meetings with efficiency and ease, budget and plan to perfection, deliver excellent presentation with confidence, have more times for yourself and your family, enjoy success after success in your life. You can use mind map if you want to reflect your innovative ideas, या फिर इसके अलावा ये है कि आपको इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉल करना चाह रहे हैं, गोल्स को ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाह रहे हैं, अपना करियर चेंज करना चाह रहे हैं, या एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा है कि मीटिंग को आप अगर एफिशिएंसी के साथ कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं, या बजट प्लानिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए करना चाहते हो। तो इन सारी मकसद के लिए, इन सारे पर्पसेस के लिए आप माइंड मैप यूज़ कर सकते हो। आफ्टर दैट, व्हाट इज origin of mind map? The term mind map was first popularized by British popular psychology author and television personality Tony Buzan. The use of diagrams that visually map information using branching and radial maps traces back centuries. These pictorial methods record knowledge and model system and have a long history in learning, brainstorming, memory, visual thinking, and problem solving by educators, engineers, psychologists, and others. माइंड मैप की टर्म जो है सबसे पहले एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट था जो कि एक टेलीविजन पर्सनालिटी भी था, टोनी बुजान, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। डायग्राम का यूज जो है ये इंफॉर्मेशन का, ये काफ़ी पुराना चला आ रहा है, और ये पिक्टोरियल मेथड जो है ये नॉलेज की रिकॉर्डिंग के लिए और मॉडल सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लर्निंग के लिए हेल्प होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, विजुअल थिंकिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। और ये जो माइंड मैप का है मेथड, ये इंजीनियर, टीचर, साइकोलॉजिस्ट और बहुत सारी दूसरी फील्ड्स में भी यूज़ किया जाता था। Historical examples. Some of the earliest examples of such graphical record were developed by Profi of Troyes, a noted thinker of the 3rd century, as he graphically visualized the concept categories of Aristotle. Philosopher Roman also used such techniques. The semantic network was developed in the late 1950s as a theory to understand human learning and develop further by Alan M. Collins and M. Rose during the early 1960s. इसकी हिस्ट्री ये है कि बहुत सारी अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स में से प्रोफ्री ऑफ टायर्स जो थे, उन्होंने इसको कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया था इन कैटेगरीज ऑफ अरिस्टोटल, जो कि फिलोसफर थे। फिर उसके बाद रोमन ने ये टेक्निक यूज की थी, लेकिन ये प्रॉपरली जो है ये 1950 में इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया और फिर इसको प्रेजेंट किया गया। ओके, नेक्स्ट वी विल discuss some guideline for mind mapping.
First of all, a mind map is open to free interpretation by each individual. हर इंडिविजुअल के लिए ये फ्री है. He or she can use. Then starts in the center where an image of the topic using at least 3 colors. उसके बाद पेज के सेंटर से इसको बनाना शुरू करें और डिफरेंट कलर्स को यूज करें डिफरेंट पोर्शंस के लिए. यूज इमेजेस, सिंबल्स, कोड्स एंड डायमेंशंस थ्रू आउट द माइंड मैप. माइंड मैप में आप डिफरेंट पिक्चर यूज कर सकते हैं, सिंबल्स या कोड, या इसके अलावा डायमेंशंस भी यूज कर सकते हैं कि इसकी कितनी कैटेगरीज हैं और आगे इनकी फर्दर डिटेल क्या है. Select keywords and print using upper and lower case letters. Keywords लिख सकते हैं आप फर्दर डिटेल के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, और या तो सारा कैपिटल लेटर्स में लिखें या स्मॉल लेटर में. एक ही तरह की राइटिंग रखें, फॉर्मेट एक ही तरह का रखें. Each word image must be alone and sitting on its own line. कोशिश करें कि हर लाइन के ऊपर उसका वर्ड आना चाहिए ताकि उसका कॉन्सेप्ट जो हो वो क्लियर हो. The lines must be connected starting from the central image. The central lines are thicker, organic and flowing, becoming thinner as they radiate out from the center. जब सेंटर से स्टार्ट करें किसी एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताना तो उस वक्त लाइंस जो हैं वो थोड़ी थिक रखें, और जैसे जैसे फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन या एलैबोरेशन करते जा रहे हैं तो फिर लाइंस जो हैं वो थिन होती जाएंगी. You can see these are examples. Make the lines the same length as the word image. जो माइंड मैप में आप लाइंस यूज कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, उनकी लेंथ और साइज एक जैसा होना चाहिए. यूज कलर्स, योर ओन कोड थ्रू आउट द माइंड मैप. अगर एक सेंट्रल आइडिया है और फर्दर वो 3 हिस्सों में या 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है तो हर एक के लिए उसकी कलर्स जो हैं वो अलग रखें और अपने कोड्स आप बनाएं जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंगली. डेवलप योर ओन पर्सनल स्टाइल ऑफ माइंड मैपिंग. माइंड मैपिंग का अपना एक स्टाइल बनाएं, दूसरे को कॉपी मत करें. यूज एम्फेसिस एंड शो एसोसिएशन इन योर माइंड मैप. जब आप माइंड मैप बना रहे हो तो उसमें देखें कि इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसको एम्फसाइज करें और एक कॉन्सेप्ट का दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ लिंकेज होना चाहिए. Keep the mind map clear by using gradient hierarchy, numerical order और outlines to embrace your branches. माइंड मैप को बनाते हुए हायरार्किकल फॉर्म में बनाएं और नंबर वाइज ऑर्डर में बनाएं, या फिर ऐसी आउटलाइन बनाएं जो कि ब्रांचेस को भी शो करें. ये देखिए जैसे टाइम का माइंड मैप है, टाइम मैनेजमेंट का, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं. मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग में आगे फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रोग्रेस है, फॉलो अप है, बैलेंस है, नेगोशिएशन है. एक उसकी ब्रांच है क्लैरिटी. क्लैरिटी कैसे हो, इसमें मोटिवेशन है, अप्रिसिएशन है, एंड इफेक्टिवनेस क्या है टाइम मैनेजमेंट की, ये एक्शन प्लान्स हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, गोल्स, डायरीज, मीटिंग्स. इसके अलावा माइंड टूल क्या है. तो जिस तरह से ये एक कॉन्सेप्ट है, फर्दर इसकी आगे एलेबोरेशन है. इसी तरह से आप जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक बताना चाह रहे हो फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हो. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस स्टेप्स. The process for creating a mind map can be described in 8 steps. 8 स्टेप्स में आप बता सकते हैं कि माइंड मैप कैसे बनाना है. स्टेप 1, सेंटर फर्स्ट. Mind mapping begins with a word or image that symbolize what you want to think about placed in the middle of the page.
सबसे पहले एक पेज के दरमियान में आप वो कॉन्सेप्ट लिखें जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाह रहे हो, जिसके बारे में बताना चाह रहे हो। स्टेप 2, लाइटिंग अप। Start with an open, creative attitude. Let go of the ideas of solving the entire problem or writing a report that everyone will love. This is simply a brain dumping process that helps stimulate new ideas and connections. जब आपने सेंटर में एक टॉपिक या एक आइडिया जो है वो लिख दिया है, उसके बाद आपके जहन में जितनी भी चीज़ें उससे रिलेटेड आती जा रही हैं वो आप लिखें, लेकिन ये कनेक्टेड होनी चाहिए एक दूसरे से। मीन्स उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखें, वो जो सेंट्रल आइडिया है उसकी थोड़ी सी फर्दर डिटेल दें। फ्री एसोसिएशन। पुट डाउन ऑल आइडियाज विदाउट जजमेंट और evaluation. As ideas emerge, write 1 or 2 words descriptions of ideas on lines branching from the central focus. Allow the ideas to expand outward into branches and sub-branches. उसके बाद जब आपने एक सेंट्रल आइडिया लिख लिया है, उसकी फर्दर आगे थोड़ी सी डिटेल लिखी है, तो उसके बाद मज़ीद जो उससे रिलेटेड चीज़ें आपके जहन में आती जा रही हैं उनको डिफरेंट ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखें। जजमेंट या एवेलुएशन ना करें कि ये ठीक है ये नहीं है, बल्कि एक एक वर्ड या 2 वर्ड की वर्ड्स में आगे फर्दर आप उसको एलेबोरेट करें कि आप मज़ीद क्या डिस्कस करना चाह रहे हो। उसको ब्रांचेस और सब ब्रांचेस में डिवाइड कर लें। स्टेप 4 इज थिंक फास्ट। Your brain works best in 5 to 7 minutes bursts, so capture the ideas as rapidly as possible. Keywords, symbols, and images provide a mental shorthand for recording ideas as quickly as possible. फॉर एग्जाम्पल आप कोई आइडिया प्रेजेंट करने लगे हो, प्रेजेंटेशन के लिए है या पेपर में एग्जाम में कुछ आ जाता है या टेस्ट वट एवर जो भी काम है, अगर आप स्टार्ट करते हो आप तो फर्स्ट जो 5 to 10 मिनट्स होते हैं उस वक्त तेजी से आपके जहन में इंफॉर्मेशन उस टॉपिक से रिलेटेड आ रही होती है। तो आप जितनी जल्दी हो सके उन कीवर्ड्स को, सिंबल्स को साथ छोटा छोटा करके लिखते जाएं, मतलब एक रफ सी आउटलाइन बना लें। Break boundaries. The bigger the paper, the more ideas you will have. Use different colors and styles. आपके पेपर का साइज जितना बड़ा होगा इतने ही ज़्यादा आइडियाज़ को आप प्रेजेंट कर सकते हो। You can see central first, then lighten up, think fast, उसके बाद break boundaries, multiple papers. Step 6 is don't judge. Put everything down that comes to mind, even if it is completely unrelated. If you are brainstorming ideas for a report on the status of correct in taxes and you suddenly remember you need to pick up your cleaning, put down cleaning. Otherwise, your mind will get stuck like a record in that cleaning groove and you will never generate those great ideas. जब एक दफ़ा आप माइंड मैप का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हो तो उसके बाद आपके जहन में जितनी चीज़ें आ रही हैं वो आप लिखते चले जाएं, चाहे वो इररेलेवेंट ही हों। जितनी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, जो जो चीज़ें जहन में आ रही हैं सारे लिखते जाएं। ये नहीं देखेंगे कौन सी ठीक है, रेलिवेंट है, कौन सी नहीं। अगर आप यही सोचने बैठ जाएंगे कि इनमें से कौन सी रेलिवेंट है कौन सी नहीं है, तो आपका दिमाग जो है वो एक जगह स्टक हो जाएगा और वो फर्दर आगे उस टॉपिक के बारे में सोचना छोड़ देगा। Keep moving. Keep your hand moving. If ideas slow down, draw empty lines and watch your brain automatically find ideas to put on them.
जब आप लाइनें लगा रहे हो, उसके ऊपर कीवर्ड्स लिख रहे हैं आइडिया से रिलेटेड, तो कुछ चीज़ें होती है जो आपके जहन से उस वक्त सडनली गायब हो जाती हैं, स्किप हो जाती हैं, तो उनके जगह आप खाली लाइन्स छोड़ दें ताकि बाद में जब आपको याद आए तो आप इसमें वो चीज़ें ऐड कर सकें. And step is allow organization. Sometimes you see relationship and connection immediately and you can add sub branches to the main idea. Sometimes you don't, so you just connect the ideas to the central focus. Organization can always come later. The first requirement is to get the ideas out of your head and onto the paper. जब आपने ये सारी इंफॉर्मेशन लिख ली है तो फिर आप उसको ऑर्गेनाइज कर लें एक सिस्टमैटिक तरीके से. ये कौन सा पॉइंट पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए, कौन सी लाइन किससे कनेक्टेड है. ये माइंड मैप है हेल्थ से रिलेटेड. लाइक ये देखें हेल्थ है, हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं. स्लीप विच इज़ नेसेसरी फॉर हेल्थ. आप स्लीप के आगे देखें कि इसकी डिजीज़ेस कौन कौन सी हैं. स्लीप अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो तो क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, अगर कम हो तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं. स्ट्रेस का हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है, स्ट्रेस के कॉजेज़ कौन कौन से हैं और इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, और स्ट्रेस क्या इफ़ेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ पे. लाइक देखिए डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है और आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो. ये रिलैक्सेशन है, सेट गोल्स, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें हैं. नाउ हेल्थ के साथ डाइट भी एसोसिएटेड है. डाइट में अब हेल्दी डाइट कौन सी है, जंक डाइट क्या है, ये सारी एक डिटेल्स पिक्टोरियल फॉर्म आ जाती है. नाउ व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ mind mapping. The main benefits of using mind maps are the following. The process of creating a mind maps is more interesting and entertaining than a standard chart or table. जो माइंड मैप आप बनाते हो, इसको बनाने का तरीका ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इंटरटेनिंग है एज़ कम्पेयर टू चार्ट. आप बना बनाया अगर कोई टेबल ले लेते हो या चार्ट ले लेते हो तो वो इतना अच्छा या इतना क्रिएटिविटी उसमें शो नहीं होगी जितना माइंड मैप में होगी, क्योंकि ये आपकी अपनी एफर्ट है. Their visual quality permits user to highlight and review key points easily and more quickly than with standard sets of notes. आपको एक टॉपिक के बारे में अगर माइंड मैप बना हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि जो टॉपिक प्रेजेंट करने वाला है वो इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर रहा है. मतलब एक पूरी रफ स्केच आपके सामने आ जाएगा. They facilitate recall because the association of ideas mirrors the way the brain works. इसको देख के आपको रिकॉल कर सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके जहन में जो चीज़ें आ रही होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आप इस पे लिख लेते हो. दे हेल्प ग्रुप मेक सेंस आउट ऑफ थिंग एंड हेल्प एस्टैब्लिश प्रायोरिटीज़. माइंड मैप के ज़रिए पता चल जाता है कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं. पहले आप क्या चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हो और उसके बाद सेकंड थर्ड नंबर पे क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं. Now what is difference between mind mapping and concept mapping? Concept map. Mind maps differ from concept maps in that mind maps focus on only one word or idea, whereas concept maps connect multiple words or ideas. Mind map जो होता है वो एक वर्ड पे फोकस करता है या एक आइडियाज़ को लेके चलता है कि उसको प्रेजेंट करना है या उसकी एक्सप्लेनेशन क्या करनी है, उसके लिए डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. जबकि कॉन्सेप्ट मैप जो है वो मल्टीपल वर्ड्स के साथ होता है. मतलब उसमें मोर देन वन वर्ड आप एक से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो.
Also, concept maps typically have text label on their connecting lines. Mind maps are based on tree structure denoting relationships with a central governing concepts, whereas concept maps are based on connection between concepts is more diverse pattern. कॉन्सेप्ट मैप जो होता है वो आप उन कह सकते हैं कि ये लेबल्स हैं, टेक्स्ट लेबल्स हैं जो कि आप उन लाइंस के ऊपर या ब्रांचेस के ऊपर लिखते हैं। लेकिन माइंड मैप जो है वो एज अ ट्री है जिसमें कि सारा रिलेशनशिप बताया जाता है कि अगर एक आइडिया है तो वो किन किन सब आगे ब्रांचेस में डिवाइड होगा और फर्दर उसके आगे क्या एक्सप्लेनेशन है। ओके, नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ माइंड मैप्स। प्लानिंग, brainstorming, group thinking, documenting, note taking, and resources. प्लानिंग के लिए किसी चीज़ किसी टॉपिक की प्रेजेंटेशन के लिए आप माइंड मैप यूज़ कर सकते हो। माइंड मैप जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, रिकॉल के लिए यूज़ होता है कि आपको इससे डिफरेंट चीज़ें याद आ जाएं। इसके अलावा ग्रुप थिंकिंग और डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होता है। आप अगर कोई न्यू आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स में, कुछ बताना चाह रहे हो, तो माइंड मैप अगर आप उसमें बनाओगे तो उससे क्लियर पिक्चर एक सामने आ जाएगी। इसके अलावा नोट टेकिंग के तौर पे माइंड मैप यूज़ होता है। जब आप लेक्चर सुन रहे होते हो या कोई किसी चीज़ को सुन रहे होते हो तो आप पिक्टोरियल फॉर्म में या डायग्रामेटिकली फॉर्म में नोट कर सकते हो कि कौन कौन से पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट रिसोर्सेज जो हैं वो आप बता सकते हो कि माइंड मैप में कैसे यूज़ किए जाते हैं, ये कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो आप डिस्कस करना चाह रहे हो।